Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is Zainul Islam, your education and career counselor, and I welcome you all to our YouTube channel. So today's video is about studying in Canada, and for that matter, we have a very esteemed guest on our YouTube channel. Let me introduce you to a fellow education and career counselor, Mr. Suresh Tawqir. Assalamu alaikum, sir. How are you? Walaikum Assalam, I'm good. So, sir, over to you. Sir Zurez, I request you to lead this webinar and please explain each and every bit about studying in Canada. Thank you. Okay, perfect. Assalamu alaikum again, everybody. My name is Zoresh Tawqir and I'm an education career counselor. So, आज के इस webinar का मकसद है to understand and inform everybody about potential opportunities that they have available in Canada for undergraduate studies. So, as you can see on the screen, हम जो topics cover करेंगे that are एक brief introduction देंगे about Canada, the pros and cons about applying in Canada, स्टडीज के रूट्स क्या क्या हैं इन कनाडा, किन किन इनटेक्स वुड बेसिकली इनटेक्स है इसके किन किन टाइमिंग्स पे एडमिशंस ओपन होते हैं या क्लासेस स्टार्ट हो रही होती हैं, ट्यूशन फीस एवरेज किस तरह पे, हाउ डू दे कैलकुलेट, व्हाट आर वी लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ द ट्यूशन फी, स्कॉलरशिप्स, वर्क परमिट, एंट्री रिक्वायरमेंट्स के अंदर वीजाज हम कवर करेंगे. पोस्ट स्टडी, वंस यू कंप्लीट योर स्टडीज, तो एग्जैक्टली व्हाट डू पोस्ट स्टडीज वर्क परमिट लुक लाइक, आप वहां पे काम करना आपको अलाउ होता है नहीं होता, कितनी देर का होता है, परमानेंट रेजिडेंस का रूट क्या बनता है. एंड उसके अलावा विल ब्रीफली टच अपॉन एप्लीकेशंस फॉर मास्टर्स एज वेल फॉर दोज इंडिविजुअल्स जो कि सोच रहे हैं कि लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम लोकल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू हम विल मूव टू कनाडा फॉर मास्टर्स. सो उसके ऊपर विल टच अपॉन दैट. सो let's go ahead. With affordable tuition fees, quality education, and flexibility to work during study, post-study work, and immigration, it is no surprise that Canada is one of the premier destinations for international students. So, in Canada, 2025, we lack 30,000 international students. It's been 93% of the students are satisfied with their education experience, and the country is very pro-immigration. Generally, हम भी सुनते आ रहे हैं Canada is pro-immigration. That has been true historically. इसके अंदर they do have wonderful rules, wonderful opportunities for immigrants and for students who are coming to Canada जो कि आगे पढ़ना चाह रहे हैं. थोड़ा सा इसके अंदर से अब हर डेस्टिनेशन के अपने pros and cons होते हैं. In terms of pros and cons, what are the pros of study destination like Canada? आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अलाउड होता है. एक तो उसके अंदर द वे इट वर्क्स इज हाउ मच, द क्वेश्चन बिकम्स कितना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है. पहली बात तो ये पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है क्या. पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इज लिटरली व्हाट इट सेज, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट. पढ़ाई आपने कंप्लीट कर ली, कंप्लीट करने के बाद आप चाहते हैं कि वहां पे काम करें. काम करने के लिए आपको वहां पे वीजा चाहिए. वीजा आपको कितनी देर का एक्सटेंशन मिल रही होगी, आपको कितनी देर में अलाउड होगा वहां पे काम करना, और उसके बाद आप उसको अगर वर्क वहां पे एक अच्छी जॉब लैंड करके एक्सटेंड करते हैं तो व्हाट डज दैट लुक लाइक. So that is what post-study work permit is. And yes, they do allow post-study work permit. Can apply for permanent residence. जो PR, basically the term PR that you see in the file is permanent residence. You can apply for permanent residence 1 to 3 years after 1 to 3 years of work experience. So it varies from province to province. कुछ cases के अंदर, let's suppose आपने 4 years का undergraduate program था, आपने complete किया, 1 साल का आपने उसके बाद काम करते हुए हो गए. Depending on the points that you've accumulated, you will qualify for post permanent residence. आप apply कर पाएंगे. कुछ states, कुछ provinces के अंदर 3 years के बाद आप कर सकते हैं. Generally, tuition fees for Pakistanis at least is less than the tuition fees in the US because US dollar is somewhere around 285, 86. Interbank में 300 plus in open market. So, उसके comparison में if you were to look at Canadian dollar somewhere around 205 to 207 तक, interbank में 230 तक है in the open market. So what that means is that generally because of the exchange rate fee के फर्क की वजह से, और वैसे generally भी fees are somewhat lower. Cons, first winters are harsh. सर्दी होती है, the temperature goes to as low as minus 30 degrees. So that does make it difficult destination at least for the first year, but उसके बाद once you acclimatize हो जाते हैं, you get used to the climate, तो फिर it ends up becoming much easier.
डिपेंडिंग ऑन कि आप वीजा प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, वीजा इज नेवर गारंटीड। दैट इज जो हम डन बेस पे सुनते हैं, लाइक आई एम नॉट श्योर कि लाइक जस्ट एक टर्म है कि डन बेस पे, नहीं कि कंफर्म वीजा आ जाएगा, बस मैं इतने से पैसे लेंगे, लाइक इस तरह की चीजें। देयर आर सम इंडिविजुअल्स दैट आई हर्ड से दैट। सो वो दैट्स नेवर ट्रू। उसके अंदर यस, कुछ कंट्रीज के अंदर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट वीजा इज हायर। कुछ कंट्रीज में वन कैन से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट वीजा इज लोअर based on the assessment, based on the documentation. On average, um, with certain exceptions, you could say कि आपका 60 to 70% चांस ऑफ वीजा अराइवल होता है फॉर कनाडा। इन टर्म्स ऑफ रूल्स, इसकी आपकी आती हैं एक देयर इज दिस टर्म कॉल्ड 11 ग्राउंड्स ऑफ इनएडमिसिबिलिटी। 11 grounds of inadmissibility are rules and regulations dictated by the Canadian government कि अगर आप इनके अंडर फॉल कर रहे हैं तो फिर आपको वीजा नहीं मिलेगा। उसमें 11 ग्राउंड्स के अंदर द मोस्ट कॉमन ग्राउंड इज इनएडमिसिबल फैमिली मेंबर। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक फैमिली मेंबर है जो कि इनएडमिसिबल है इन कनाडा ड्यू टू सर्टेन रीजन। इनएडमिसिबिलिटी मींस कि वहां पे वो जा नहीं सकता, उसको वीजा नहीं मिलेगा। उसमें दो तीन रीजन आ जाते हैं। द फर्स्ट रीजन बीइंग के मे बी उनके ऊपर कोई पुलिस केस चल रहा है, कोई और मसला है, पुलिस लिटरेसी सर्टिफिकेट इशू हो ही नहीं सकता। अनदर रीजन कैन बी के मेडिकल ग्राउंड्स, उनको कोई ऐसी बीमारी है विच इज कंटेजियस, तो वो इनएडमिसिबल है। बाय एक्सटेंशन अगर वो इनएडमिसिबल है तो आप भी इनएडमिसिबल होंगे। दैट इज वन ऑफ द मोर मेजर रीजंस जिसकी वजह से कनाडा में वीजा रिजेक्ट हो रहा होता है। अदर देन दैट, इसके अलावा 11 ग्राउंड्स ऑफ इनएडमिसिबिलिटी आई वुड रिकमेंड कि जो समझना चाह रहे हैं ये क्या है, लाइक गूगल देम अप। बट यस, as long as we cover them and as long as we attach relevant documentation, you with a fit 60 to 70% chance of probability कि आपका वीजा आ जाएगा। अब उसमें there are two different programs that one can go for। या तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं बैचलर्स के लिए, which is a 4 year program, या फिर आप जा सकते हैं कॉलेज के अंदर। कॉलेज के अंदर यूजुअली क्या होता है, 1 to 2 years का एक प्रोग्राम होता है जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट और डिग्री इशू हो जाती है, जिसके बाद यू कैन इवन अप्लाई फॉर जॉब्स और यू कैन पोटेंशियली गेट एन एडमिशन एट अ यूनिवर्सिटी इन द 3rd year। सो तीन टाइप के आपके डिप्लोमाज आ रहे हैं। रेगुलर डिप्लोमा होता है, एंड दिस इज अगेन फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हुआ है या ए लेवल्स कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है, ए लेवल्स इंटरमीडिएट के आपको रिक्वायरमेंट, ये आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। सो उससे पहले ऑफर कंडीशन आती है, बट दे डू रिक्वायर कि आप आपके बिफोर द इशू यू अ फाइनल ऑफर वो ये ग्रेड्स आपके देखना चाहते हैं। सो रेगुलर डिप्लोमा इज ग्रांटेड एट द एंड ऑफ एन 2 year प्रोग्राम। फिर एक एडवांस डिप्लोमा होता है जो कि 3 साल का होता है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ये है कि आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिए हुए और उसके बाद आप आगे मास्टर्स या मास्टर्स के समवट इक्विवेलेंट आप इसको देख सकते हैं। सो फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, आपकी एक या तो कॉलेज में आप इंटरमीडिएट कर लिए और उसके बाद आप यू कैन गो फॉर अ 2 year कॉलेज, जिसके बाद तीसरे साल आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज कंप्लीट कर सकते हैं, 4th year कंप्लीट कर सकते हैं, और यू कैन गो फॉर गो फॉर एन अंडर ग्रेजुएट स्टडीज डायरेक्टली। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे यू कैन सी फाउंडेशंस। फाउंडेशंस इज बेसिकली, लेट्स सपोज आप जाना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से आप क्वालिफाई ना कर पाए। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको एक इनकी टर्म होती है यूनिवर्सिटी ट्रांसफर, यूटीपी जो है यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम। आपको वो कहते हैं कि कुछ टर्म आप एक एक्स्ट्रा लगाएं, 1 साल आप एक्स्ट्रा लगाएं और उसके बाद आप बैचलर्स के प्रोग्राम में जा सकते हैं। दैट इज फॉर स्टूडेंट्स जिनके फाइनेंशियल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही टू क्वालिफाई डायरेक्टली फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। बैचलर्स 3 to 4 years का होता है और उसके बाद यू गेट एनीवेयर बिटवीन 2 to 3 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। व्हाट दैट मींस इज 2 से 3 साल आपको मिल रहे होते हैं वहां पे अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आगे जॉब ढूंढने के लिए। सो अच्छा, ग्रेजुएट डिप्लोमा, उसके अंदर हम आ जाते हैं मास्टर्स एमबीए। वी डोंट नीड टू मास्टर्स का, वैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देते हैं। अगर 1 साल के डिप्लोमा पे जा रहे हैं, यू गेट 1 year ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, यानी 1 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया, 1 साल उसके बाद आप वहां पे जॉब करके अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं। 1.5 years का डिप्लोमा है, उसके बाद आपको मिलता है 1.5 years का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। 2 years के डिप्लोमा में मिलता है 3 years का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट।
4 इयर्स के बैचलर्स के बाद अगेन 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपका ऑलमोस्ट बन रहा होगा। ठीक है। मेजर एंड माइनर इंटेक्स, मोस्टली यूनिवर्सिटीज का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा होता है सितंबर में। उसके अलावा जनवरी और मई के अंदर भी प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, लिमिटेड यूनिवर्सिटी में लिमिटेड प्रोग्राम्स। एनुअल ट्यूशन फीस के अंदर अगर हम देख रहे हैं अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए, सो फीस कैन रेंज फ्रॉम, अच्छा दिस, इसमें जो फाइल के अंदर दीज फिगर्स आर इन कैनेडियन डॉलर्स। सो एनीवेयर बिटवीन 20,000 टू 60-70,000 कैनेडियन डॉलर्स तक आपकी फीस जारी होती है साल की। अगर हम कॉलेज का डिप्लोमा देख रहे हैं तो एनीवेयर बिटवीन 14-15,000 कैनेडियन डॉलर्स टू 30-35,000 कैनेडियन डॉलर्स आपके जा रहे होते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट द फीस इज लुक्स लाइक। अच्छा, कीप इन माइंड स्कॉलरशिप्स वाइज हम थोड़ा सा हम आगे इसमें देख लेते हैं। स्कॉलरशिप्स अनफॉर्चुनेटली कनाडा के अंदर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में देर आर लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप्स। आपका यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो विच इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, उनका एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम, फाइनेंशियल प्रोग्राम है इनफैक्ट। इसके अलावा पार्शियल स्कॉलरशिप्स होती हैं यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, दैट कैन रेंज फ्रॉम बिटवीन 500 कैनेडियन डॉलर्स टू 5,000-7,000 कैनेडियन डॉलर्स। इसके अलावा आपके पास आ जाती हैं ऑप्शंस बर्सरीज की। सो वहां पे जाके वंस यूर देयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप अच्छा स्कोर करके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर बर्सरीज अप्लाई कर सकते हैं, दैट एक्ट एज डिस्काउंट्स, जिसके अंदर आपकी थोड़ी फीस कम हो जाती है। बट फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स कनाडा के अंदर अनफॉर्चुनेटली आर वेरी लिमिटेड इन नेचर। सो ट्यूशन फीस हमने कवर कर दी। लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर हम देख लेते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस एनीवेयर बिटवीन 8,000, 10,000 टू 15,000 पर एनम, साल का 8 से 10,000 का खर्चा हो रहा होता है। उसका ब्रेकडाउन यू कैन सी, 1,000 कैन डॉलर्स का अराउंड लाइक आपका खर्चा हो रहा होगा बुक्स पे, ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस रहते हुए यू लुकिंग एट अराउंड 3-4,000 का रेंट आपका बन जाएगा। फूड का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, यूटिलिटीज, इंटरनेट, फोन, क्लोथिंग। कलेक्टिवली जब हम देखिए कहीं भी, लेट्स सपोज इफ यू आर स्टूडेंट क्रेसेंट, लेट्स से अब आप क्रेसेंट आ रहे हैं, दैट्स एक तो ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं टू अ स्कूल। इसके अलावा भी आपके खर्चे होते हैं। खर्चे फॉर इंस्टेंस किस तरह के, जैसे आपके ट्रैवल का खर्चा है, आपके यूनिफॉर्म का खर्चा है, बुक्स का खर्चा है, एग्जाम्स का खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, पॉकेट मनी है। सो ये सारे खर्चे, दैट इज द कॉस्ट दैट यूर स्पॉन्सर्ड, आपके पेरेंट्स अगर आपको फाइनेंस कर रहे हैं तो फिर पेरेंट्स के केस में तो दैट इज द अमाउंट दैट दे कलेक्टिवली पे फॉर यू टू बी एबल टू अटेंड दैट इंस्टीट्यूशन लाइक फॉर इंस्टेंस। तो इसमें कलेक्टिवली इसको हम किस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस। ट्यूशन फीस प्लस रहने सहना प्लस खाना पीना प्लस अदर खर्चे हम जब क्लम्प कर लेते हैं तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ अटेंडेंस बन रही होती है, एंड दैट इज पार्ट ऑफ एन एक्सपेंस एज वेल। सो इस तरह ही हम जब देखते हैं यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं टू एनी डेस्टिनेशन इन अक्रॉस द ग्लोब, सच एज इन कनाडा, जहाँ पे आपके ट्यूशन एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंसेस समवेयर अराउंड बन रहे होंगे 10,000 तक। उसके अलावा ट्यूशन लेट्स से हम एक लोअर साइड पे रखते हुए 13-14,000 कैनेडियन डॉलर्स की अगर हम ट्यूशन देख रहे हैं, फिर आपके वीजा की कॉस्ट आ रही है, यूर लुकिंग एट समवेयर अराउंड 25-27, लाइक अराउंड 30,000 कैनेडियन डॉलर्स का एक बजट, जो कि आपको इनिशियली जाने से पहले खर्च हो रहा होगा। पार्शियल स्कॉलरशिप्स होती हैं 2000 ऑनवर्ड्स, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हैं, फाइनेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं। मास्टर्स के अंदर लोन की ऑप्शंस भी आ जाती हैं। यूनिवर्सिटी के साथ यू कैन वर्क 20 आवर्स पर वीक ऑफ कैंपस, और यू कैन वर्क फुल टाइम ऑन कैंपस। आपकी जो और जॉब्स होती हैं, दे पे अराउंड 600-700 कैनेडियन डॉलर्स पर वीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप अपना रहने सहने का बाद जॉब करके आप साथ साथ कवर कर सकते हैं ड्यूरिंग योर, और आप सेव अप कर सकते हैं कि मैंने सपोज अगले साल की ट्यूशन फीस पे करनी है या कवर उसके लिए मैंने कुछ कंट्रीब्यूट करना है, यू कैन स्टार्ट सेविंग अप फॉर दैट। स्टूडेंट्स और ऑन स्टूडेंट्स अगर आप कोर्स में डायरेक्ट फुल टाइम प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया होता है तो फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से फुल टाइम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, पार्ट टाइम प्रोग्राम्स में नहीं कर सकते। ठीक है, सो उसके अंदर वहां भी आप जब यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं उसके बाद यू आस्क देम, टेल देम कि यू नीड एन ऑफ कैंपस वर्क परमिट, वो आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट में वो लिंक कर देते हैं, और उसके बाद फिर यू अप्लाई फॉर दैट ऑफ कैंपस वर्क परमिट। ऑन कैंपस जॉब्स में किस तरह की जॉब्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट लाइब्रेरी में जैसे बुक स्टोर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंटिंग सर्विसेज, या इस तरह को स्टूडेंट ट्यूटर्स, स्टूडेंट एम्बेसडर्स की जॉब्स आ रही होती हैं। ऑफ कैंपस जॉब्स के अंदर रेस्टोरेंट्स के अंदर जॉब्स आ रही होती हैं, फ्रीलांसर की जॉब्स आ रही होती हैं, लाइक उबर चला रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो लाइक दैट्स एंड्स अप बिकमिंग
रिक्वायरमेंट ऑफ सॉर्ट्स। हैविंग सेड दैट, अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, अच्छा इसमें कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि मैथ के ग्रेड्स वो देख रहे होते हैं ज्यादा, दैट एंड्स अप बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट ग्रेड। इसके अलावा आपके ओवरऑल 65-70% और अबव के ऊपर यू टेंड टू बिकम एलिजिबल टू क्वालिफाई फॉर एन एप्लीकेशन। दैट्स व्हाट यू एंड अप लुकिंग एट। इसके अलावा आइल्स रिक्वायर्ड होता है। आइल्स के अंदर यू रिक्वायर 6.5 ओवरऑल। कुछ केसेस में आइल्स की एग्जाम्पशन मिल जाती है इफ यू हैव अ गुड स्कोर इन इंग्लिश इन ओ लेवल्स। अच्छा, अब वीजा अप्लाई करने के हम देख लेते हैं। वीजा अप्लाई करने के दो रूट्स होते हैं। रिकमेंडेड रूट इज द एसजीएस रूट और द स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम रूट। आइल्स आपका रिक्वायर्ड होगा उसके अंदर ये होता है पहले साल की आपकी स्कॉलरशिप के बाद जितनी भी ट्यूशन फी बन रही होती है वो एडवांस में पे करनी होती है। इसके अलावा 10,000 कैनेडियन डॉलर्स आपने रखवाने होते हैं टू इन कैनेडियन बैंक अकाउंट, जिसमें सो आपको यहाँ से आप बैठे हुए पाकिस्तान से आप कैनेडियन बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो, आपके अपने नाम पे होता है, फिर यहाँ से आप उनको वहां पे पैसे भेजते हैं। 10,300 आप भेजते हैं, 300 प्रोसेसिंग में कट जाते हैं, 10,000 कैनेडियन डॉलर आपके पहुंच रहे होते हैं। यू टेल देम कि यू आर गोना बी कमिंग देयर टू स्टडी इन कनाडा एंड दैट यू वांट देम टू कीप दैट अमाउंट एज लॉक्ड। और जब आप आओगे तो फिर आप उनसे आप लोगे और उसके अगेंस्ट आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड GIC। अब GIC आपको इशू हो गया। होता क्या है, ये 10,000 आपके कैनेडियन डॉलर आप बैंक अकाउंट में, कैनेडियन बैंक अकाउंट में जमा करवाते हैं, वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ऑफ अबाउट 800 to 900 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ की मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आपको वापस मिल रहे होते हैं, सो दैट यू कैन कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस। ये यहाँ से वहां भिजवा के जाने होते हैं। इसके अलावा फुल फीस हमने पे कर दी। फिर उसके अलावा हम नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर के जो खर्चे होते हैं वो हम अपनी बैंक स्टेटमेंट में दिखा रहे होते हैं। ऑलमोस्ट जो वीजा की कॉस्ट आ जाती है अप्लाई करने की, दैट्स अराउंड 1,800 कैनेडियन डॉलर्स इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। नॉन एसडीएस रूट के अंदर जाने का खर्चा थोड़ा कम होता है। आप एक सेमेस्टर की फीस पे करते हैं, बाकी रिमेनिंग फीस आप अपने लोकल एक बैंक अकाउंट में दिखा देते हैं। वीजा कैन टेक, अब उसमें एसडीएस रूट के थ्रू अगर आपने वीजा अप्लाई किया हुआ है तो अराउंड 2 मंथ्स के अंदर वीजा आ जाता है। दैट इज एट दिस पॉइंट इन टाइम, अगर हम बात करें, टुडे इज व्हाट 9th June 2023। So at this point in time, if you were to look at, तो around you can see within almost around 2 months का आपका एक टाइम पीरियड बन रहा होगा, टाइम फ्रेम जिसके अंदर आ रहे होंगे वीजाज। नॉन एसटीएस के अंदर आई सीन के 8 months to 6-8 months का भी वो एक पीरियड ले रहे होते हैं वीजा के ऊपर डिसीजन रिलीज करने से पहले। तो कलेक्टिवली फुल टाइम वर्क का मतलब होता है 40 hours per week। परमानेंट रेजिडेंस के अंदर ये होता है कि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स आती हैं। अगर आपने सुपरवाइजरी पोजीशन के ऊपर, सुपरवाइजरी लेवल के ऊपर 1 साल कनाडा में जॉब कर ली है, पोटेंशियली यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी डिपेंडिंग ऑन विच प्रोविंस यू आर इन। और जनरली 1,095 डेज आपने स्पेंड करने होते हैं वहां पे टू अप्लाई टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट। थोड़ा सा मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स के ऊपर बात कर लें। मास्टर लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट स्टडीज पे यहाँ पे लाइक मास्टर्स का मेंशन था तो उसमें आ रहा है, बट अंडर ग्रेजुएट स्टडीज और कॉलेज की हम बात कर लें, कॉलेजेस आर रिलेटिवली चीपर। अंडर ग्रेजुएट स्टडीज 4 साल का प्रोग्राम होता है, कॉलेज का प्रोग्राम का 1 से 2 साल का। और पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स आर मोर प्रैक्टिकल इन नेचर, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स आर मोर थियोरेटिकल इन नेचर, बट यूनिवर्सिटी का एक एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सपीरियंस बेहतर होता है। कॉलेजेस का इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सपीरियंस इज नॉट एज इंटेंस। सो ये कलेक्टिवली आपकी सिचुएशन बन रही होती है। इसके अलावा इफ देर आर एनी स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर, हु आर ऑलरेडी इन अ यूनिवर्सिटी एंड वांट टू अप्लाई फॉर अ ट्रांसफर, तो उसके अंदर यू कैन रीच आउट टू मी और सर जैन। उनके अंदर ऑन अ केस बाय केस बेसिस वी कैन गाइड यू कि किस तरह आपने अप्लाई कर सकते हैं। बट रिक्वायरमेंट्स ये, एक बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आपने 2 years अपने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के कंप्लीट किए हो, और उसके अंदर से फिर वो देखते हैं कि कितने आपके ग्रेड्स ट्रांसफर करेंगे। उसके अंदर 3 to 6 months वो डिसीजन में ले लेते हैं यूनिवर्सिटीज में। इफ यू वांट टू अब सी कि किन यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई करना है, उनकी आप यू कैन चेक देम ऑनलाइन एज वेल, यू कैन रीच आउट टू अस। एंड फाइनली टिप्स फॉर सर्वाइविंग इन कनाडा। एक तो आपके हेल्थ केयर के अंदर क्लॉजेस समझें आप एग्जैक्टली हेल्थ केयर वाइज कौन कौन सी रिसोर्सेज दैट यू कैन रीच आउट टू। कैनेडियन कल्चर के बारे में बी अवेयर, बी अंडरस्टैंड दैट। मेक श्योर कि इफ यू वंस यू एनरोल्ड इन अ प्रोग्राम, आप पंक्चुअली क्लासेस अटेंड करते रहो। आप अगर अप्लाई करने के प्रोसेस में हो, मेक श्योर दैट यू नो ऑल द डेडलाइंस, ऑल द रिक्वायरमेंट्स।
Make sure if you're from Crescent, make sure that you reach out to your education and career counselors. You can reach out, like I said, you can reach out to me or you can reach out to Suzanne. Make sure that you understand कि आपके exactly financials में what are we looking at. Keep in mind जाने का खर्चा कनाडा में थोड़ा ज्यादा होता है. Financial aid or scholarship की opportunities are somewhat limited. So what that means is कि budget के ऊपर parents से conversation is very important. That is something that you would need to do. और उसके अलावा make sure that you understand, you list everything down and you make sure you apply. Okay, so that would be a brief overview of Canada as a destination. इनमें कौन से call, if you want to deep dive further, so again you can reach out to me or Sirzen. कौन सी यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर सकते हैं potentially, कौन सा program would be more suitable, और उनके अंदर फिर हम university specific conversation we can take it from there. And with that, I will wrap this up. So then, is there anything you would want me to cover? So, no, sir. Thank you so much for giving us a very holistically explaining all the things that are required to study in Canada. You know, मेरी अपनी एक अफिलिएशन है कनाडा के साथ, बिकॉज कनाडा के अंदर स्टडी के लिए आप जाते हैं तो एक तो लैंग्वेज बैरियर वगैरह आपको फेस नहीं करने पड़ते क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, और दूसरा ये है कि बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है पाकिस्तान में अगर आप वापस भी आना चाहते हैं, वहां भी रहना चाहते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम सर. और जैसे कि सर ने बताया, हम लोग अवेलेबल हैं ऑन गर्ल्स कैंपस भी, बॉयज कैंपस भी. क्रिसेंट में गर्ल्स कैंपस में हमारी टाइमिंग है मंडे ट्यूसडे 10 to 2, और ट्यूसडे को स्पेसिफिकली आप अगर सर जुरेज से मिलना चाह रहे हैं तो सर जुरेज इज स्पेसिफिकली ऑन ट्यूसडे. बॉयज कैंपस में हम लोग वेनसडे थर्सडे फ्राइडे 11 to 3 अवेलेबल हैं, और सर जुरेज स्पेसिफिकली वेनसडे को अवेलेबल है. सो with this I'll end this up, or thank you so much again sir for coming and giving us all the information about Canada. Thank you so much sir. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.